friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about two figure of speech. First one is asyndeton, second one is polysyndeton. First, I am explaining you about asyndeton. Asyndeton is such type of figure of speech in which there is absence or omission of any kind of conjunctions in a sentence. So when there is absence of any kind of conjunction or removal of any kind of conjunctions in a sentence, that type of figure of speech is called as asyndeton. Now I am telling you the reason why such type of figure of speech is used by writers in their works. Writer uses such type of figure of speech in their works as because whenever writer writes his works, he tries to pour his own feelings in that particular work, and when he pours his own emotion in that work, at that time continuous flow of thought is running in his mind, and at that particular movement writer uses such type of figure of speech in his work to make his sentence appear as if natural to the readers. So that is why this type of figure of speech is used by writers in their works. And whenever we try to use conjunction in a sentence, what happens is conjunctions makes our sentences appear artificial. So writer wants to remove that particular artificiality through his works. So that is why writer uses such type of figure of speech, that is asyndeton, in his works. This is the main use of asyndeton, and that is why this particular figure of speech is used by writer in his works. Now I am talking about polysyndeton. Polysyndeton means when there is excessive use of conjunctions in a sentence, that type of figure of speech is called as polysyndeton. So, when there is excessive use of conjunctions in a sentence, that type of figure of speech is identified as polysyndeton. Now, I am telling you why writers use such type of figure of speech in their works. Writer uses polysyndeton in their works because they want to make readers travel through the whole scene that the writer is creating through his works. So that is why polysyndeton is used by writers as a figure of speech. Writer uses this type of figure of speech because they wanted to make readers travel through their work or see the entire scenario which a writer is trying to create in his works. That is why this type of figure of speech is used by writer in their work. So such is the difference between asyndeton as well as polysyndeton. In asyndeton there is no use of conjunctions, while in polysyndeton there is excessive use of conjunctions. Now let's understand this term in a more better way. First of all, I am discussing with you about asyndeton. एसिनडेटन कम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग. एसिनडेटन एक तरीके का ग्रीक मीनिंग है जिसका मतलब होता है अनकनेक्टेड होकर रहना, यानी किसी भी तरीके की सेंटेंस के अंदर कंजंक्शंस का यूज़ ना करना. इट मीन्स ओमिशन और एब्सेंस ऑफ अ कंजंक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. तो हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तब हम अलग अलग पार्ट से उस सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. तब किसी भी उस टाइम पर किसी भी तरीके की कंजंक्शन का यूज़ ना करना, उसे कहा जाता है एसिनडेटन. नाउ एसिनडेटन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. एसिनडेटन क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट अकर्स व्हेन वर्ड्स लाइक एंड और आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस में जब एंड या फिर और का ओमिट हो जाए या फिर रिमूवल हो जाए, दैट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज एसिनडेटन, यूज टू मेक थिंग्स नेचुरल. इससे क्या होता है, राइटर इसे क्यों यूज़ करता है? वो इसलिए यूज़ करता है ताकि एसिनडेटन का यूज़ करके जो भी राइटर्स अपने वर्क के थ्रू सेंटेंसेस मेंशन करने की कोशिश कर रहा है वो रीडर्स को नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल ना लगे. देन
By removing conjunctions, a writer may be able to create sentences that sound like someone is actually speaking them. तो conjunctions का हम जब रिमूव कर देते हैं conjunctions को, तब इससे क्या होता है, राइटर उस टाइप के सेंटेंसेस को क्रिएट करने की कोशिश करता है जो कि आर्टिफिशियल ना दिखें, ऐसा लगता हो कि वो कोई वाकई में उसे उस सेंटेंस को प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश कर रहा हो। तो राइटर्स इसे इसलिए यूज़ करते हैं एसिंडेटन को, ताकि उनके सेंटेंसेस रीडर्स को नेचुरल लगें। देन फंक्शंस या फिर यूज़ ऑफ एसिंडेटन, क्या क्या यूजेस है इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच के। पुट एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, इसके थ्रू क्या होता है, राइटर अपने सेंटेंसेस पर एम्फेसाइज करवा सकता है रीडर्स को। देन रिड्यूस अ फ्रेज टू अ मोर कॉन्साइज फॉर्म, इससे क्या होता है, जब हम कंजंक्शंस का यूज़ नहीं करते तो बातें बिल्कुल कंसाइज हो जाती हैं, हम कम शब्दों में अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं सामने वाले को। देन मेक लाइन्स साउंड मोर नेचुरल, इससे लगता है कि हमारे सेंटेंसेस यानी हम नेचुरली में वो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस में कोई आर्टिफिशियलिटी नज़र नहीं आ रही है। हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द रिदम ऑफ वर्ड्स, यस, जब हम किसी भी तरीके राइटर किसी भी तरीके के थॉट्स को अपने वर्क के थ्रू मेंशन करता है, तो उस टाइम पे उसका माइंड उसके दिमाग में थॉट्स जो है चलते जाते हैं। तो अगर वो एसिंडेटन का यूज़ करता है तो इससे ये नज़र आता है कि उसके वर्ड्स में रिदम है। So helps in speeding up the rhythm of words. Then creates immediate impact, इसके थ्रू क्या हो पाता है, immediate impact दिख पाता है। And the readers are attuned to what the author is trying to convey, and readers को नज़र आती है कि क्या वाकई में राइटर कन्वे करने की कोशिश करना चाहता है अपने वर्क के थ्रू। राइटर चाहता है कि अपने वर्क्स के थ्रू वो ओरिजिनलिटी रीडर्स को कन्फ्रंट करवा सके, नेचुरलिटी जो है वो कन्फ्रंट करवा सके। नेचुरलिटी क्या है, उसके थॉट्स जो है उसके नेचुरल होते हैं, तो उसी से कन्फ्रंट करवाना चाहता है रीडर्स को, अपने थॉट्स से कन्फ्रंट करवाना चाहता है रीडर्स को। देन एग्जाम्पल ऑफ एसिंडेटन, तो कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन का वर्क है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शेल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन की, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शेल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसिंडेटन का। नाउ बिलवड बाय टॉनी मॉरिसन, ये वर्क है बिलवड टॉनी मॉरिसन का, वो भी बहुत, उसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसिंडेटन का। डेफिनेशंस बिलोंग टू द डिफाइनर्स नॉट द डिफाइंड, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बोलते समय एंड का यूज़ नहीं किया गया यहाँ पर। तो एक और चीज़ ध्यान में देने वाली बात है कि एसिंडेटन में कॉमास का यूज़ किया जाता है एंड कंजंक्शंस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो डेफिनेशंस बिलोंग टू द डिफाइनर एंड नॉट द डिफाइंड, तो यहाँ पर एंड का यूज़ नहीं किया गया, यानी टॉनी मॉरिसन ऐसी स्टेटमेंट बोलते समय ये रियलाइज़ करवाना चाहती है, अपनी स्टेटमेंट को का जो इम्पैक्ट है वो रियलाइज़ करवाना चाहती है रीडर्स को, कि ये जो स्टेटमेंट थी ये उनकी एक तरीके से कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट था, जिसमें नेचुरलिटी नज़र आती है एंड कोई किसी भी तरीके की आर्टिफिशियलिटी नज़र नहीं आती। सो डेफिनेशंस बिलोंग टू द डिफाइनर्स नॉट द डिफाइंड। नाउ let's see some more examples. He crossed the road without looking, without listening, without question. तो ये एग्जाम्पल है एसिंडेटन का। He crossed the road without looking, without listening, without question. तो यहाँ पर इन sentences में किसी भी तरीके की conjunctions का यूज़ नहीं किया गया। Then next example है she has red hair, blue eyes, a slim nose. Then the dog ran, bounded, leapt across the field. I went shopping and brought trousers, socks, gloves, tops. I love eggs, scrambled eggs, fried eggs, boiled eggs.
तो आप देख सकते हो इन एग्जाम्पल्स में किसी भी तरीके की कंजंक्शंस का यूज़ नहीं किया गया। देन अब बात करते हैं पॉलीसिंडेटन के बारे में। द टर्म polysyndeton comes from a Greek word meaning bound together. So likewise I have said earlier that in polysyndeton there is excessive, or you can say there is use of conjunctions in a continuous succession. So such type of figure of speech is called as polysyndeton. The term polysyndeton comes from a Greek word meaning bound together. तो polysyndeton का ग्रीक में मतलब है bound together. कंजंक्शंस आर यूज्ड इन सक्सेशन। कंजंक्शंस सेंटेंसेस में एक के बाद यूज़ होती है जब इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसके थ्रू आर्टिस्टिक इफेक्ट को अचीव किया जा सकता है। इट इज़ कंसर्न विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो पॉलीसिंडेटन किससे ज़्यादा कंसर्न है, यानी जब सेंटेंसेस में एक्सेसिव एंड या फिर और का यूज़ होता है या फिर और भी किसी भी अलग तरीके की कंजंक्शन का यूज़ होता है, सो दैट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज पॉलीसिंडेटन। नाउ राइटर यूज दिस टेक्निक व्हेन दे वांट टू लिंक टुगेदर सिमिलर वर्ड्स फॉर एम्फेसिस। राइटर इस टाइप की टेक्निक को इसलिए यूज़ करता है ताकि वो एक सेंटेंस के थ्रू लिंक इस्टेब्लिश कर पाए, यानी वो सेंटेंसेस के थ्रू अपने आइडियाज़ देने की कोशिश करता है। तो उन आइडियाज़ को, यानी सेंटेंसेस में प्रेजेंट उन आइडियाज़ की इक्वल इम्पोर्टेंस रीडर्स को रियलाइज़ करवा सकता है इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके। सो राइटर्स यूज़ दिस टेक्निक व्हेन दे वांट टू लिंक टुगेदर सिमिलर वर्ड्स फॉर एम्फेसिस। देन uses of polysyndeton. Now let's talk about uses of polysyndeton to create a particularly powerful passage in their writing, कि इसके थ्रू पावरफुल वे में जो पावरफुल इम्पैक्ट है वो रीडर्स पर पड़े। अगर जब राइटर्स इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है तो अपनी लाइंस को वो इम्पैक्टफुल बनाना चाहता है ताकि रीडर्स उसकी आइडियाज़ को पढ़ के उससे कुछ लर्न कर पाएँ। तो इस वे में इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस वो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस को क्रिएट करता है। इट पुट्स एडेड एम्फेसिस ऑन ईच वर्ड, कि अगर हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं एंड और फॉर, इन सब भी का बार बार यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू जितने भी एंड के साथ में लगने वाले वर्ड हैं उन सभी वर्ड पे रीडर्स एम्फेसाइज करवा सकता है ऐसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके। मेक श्योर रीडर्स डोंट मिस एनीथिंग। तो राइटर चाहता है कि इसका यूज़ करके रीडर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को मिस ना कर पाए जो वो एक वर्क के थ्रू देना चाहता है। एट द सेम टाइम ensuring दैट ऑल द वर्ड्स आर कंसीडर्ड टुगेदर। और साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जितने भी वर्ड्स उस सेंटेंस में प्रेजेंट है उन सभी की इक्वल इम्पॉर्टेंस है। मेक द रीडर्स फील ओवरवेल्म्ड विद सो मैनी वर्ड्स। इसके थ्रू राइटर नर्वस फील करवाता है बहुत सारे वर्ड्स को एक ही सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट करके या मेंशन करके, और फ्रेजेस टू रीड एट द सेम टाइम। तो इससे क्या होता है, ओवरवेल्म का मतलब होता है नर्वस हो जाना। तो जब बहुत सारे वर्ड्स, अगर रीडर्स बहुत सारे फ्रेजेस देखेंगे तो एक बार क्या होगा, रीडर का जो एक्सप्रेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। वो सोचेंगे इतने सारे वर्ड्स प्रेजेंट हैं। देर इज़ नो टाइम फॉर द रीडर टू पॉज बिटवीन थाट्स और इमेजेस। इससे क्या होगा, जब रीडर एक राइटर के वर्क को रीड करेगा तो वो किसी भी चीज़ की तरफ अपने आप को पॉज नहीं करवा पाएगा। वो कॉन्टीन्यूसली राइटर के थॉट्स और इमेजेस को समझने की कोशिश करेगा। इसलिए पॉलीसिंडेटन का यूज़ किया जाता है। दे फॉल वन आफ्टर अनदर एंड इससे क्या होता है, आइडियाज़ जो है एक के बाद एक रीडर जान पाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का पॉज नहीं दिया जाता, बार बार कॉन्टीन्यूसली कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है। ensuring दैट द रीडर इज़ मूव्ड एंड ईजिली एबल टू सी द एंड साथ ही साथ इसके थ्रू रीडर्स पॉलीसिंडेटन का यूज़ करके राइटर्स मूव करवाता है या फिर ट्रेवल करवाता है रीडर्स को एंटायर सीन जो कि राइटर ने
अपने वर्क के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश की है। तो वो चाहता है कि जो भी पूरा एंटायर सीन जो उसने क्रिएट किया है उसमें रीडर जो है ट्रैवल होकर उस चीज़ को जाने या फिर समझें। They fall one after another, ensuring that the reader is moved and easily able to see the entire scene the writer is trying to create. Then एग्जाम्पल्स है डॉम्बी एंड सन, ये वर्क है चार्ल्स डिकन्स का जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिस इन डेटन का। द जर्नल बिलीफ वॉज वेरी स्लो, देयर वर फ्रोजी फील्ड्स एंड काउ हाउसेज एंड डंग हिल्स एंड डस्ट हीप्स एंड डिचेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कंजंक्शंस का कितनी ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है। एंड काउ हाउसेज एंड डंग हिल्स एंड डस्ट heaps and ditches and gardens and summer houses and carpet beating grounds at the very door of the railway. Then ओथेलो का वर्क है, विलियम शेक्सपियर का वर्क है ओथेलो। इफ़ देयर भी उसमें स्टेटमेंट दी गई है जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिस इन डेटन का। इफ़ देयर बी कॉर्ड्स और नाइफ्स पॉइजन, यहाँ पे और का बहुत बार यूज़ हो रहा है इन स्टेटमेंट्स में। इफ़ देयर बी कॉर्ड्स और नाइफ्स पॉइजन और फायर और सफोकेटिंग स्ट्रीम्स आई विल नॉट एंड्योर इट। देन कुछ अदर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर नॉर हिज मदर नॉर हिज सिस्टर वॉज प्रेजेंट इन द हाउस। तो इसमें नॉर का बहुत बार यूज़ किया जा रहा है। देन चार्ल्स एंड Bukowski and their friends are of the same nature. Then he has completed his essay and story and poem and diary. तो इसमें बार बार excessive way में conjunctions का use हो रहा है। Then Rebecca is wearing her feather and a hat and her muffler and her cap and her trench coat. Maybe she's freezing. तो इसमें and का बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। There are plenty of snacks for you, Johnny. You can have bread or cookies or pizza or muffins or dry fruits or junk drink water. Just drink water. So friends, here with this, this particular video lecture ends. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.